Proteins and amino acid classification. What are basically proteins? Proteins are extremely complicated molecules and are the nitrogenous compounds made up of a variable number of amino acid residues joined to each other by peptide linkages. Biomedical importance क्या है proteins की? First of all, these are the transporters of hydrophobic compounds in the blood. बहुत सारे जो compounds हैं वो इसके साथ bind होते हैं, जैसे hormones हैं, lipoproteins हैं, ये जो हैं ये bind करती हैं proteins के साथ. Cholesterol है, ठीक है. फिर they have a property of cell adhesion molecules and also those cells that attached with the extracellular matrix, and they are used as hormones. They are built in as ion channels, and they also act as enzymes. All enzymes are protein in nature. प्रोटीन्स में बेसिकली जो है एल अल्फा अमीनो एसिड होता है, जबकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो दैट कैन कंटेन बोथ डी एंड एल अल्फा अमीनो एसिड्स. बहुत सारे several of these peptides जो हैं these are of therapeutic value including the antibiotics bexitracin and gramicidin, which is a gramicidin A and anti-tumor agent bleomycin. There are certain D amino acids that occur naturally in these are D-serine and D-aspartate in brain tissue, and D-alanine and D-glutamate in the cell walls of gram-positive bacteria, and the D amino acids in some non-mammalian peptides and certain antibiotics. Deficiency symptoms of proteins are growth retardation in children, weight loss in adults, impaired hemoglobin formation, delayed wound healing, fatty liver, deficiency of plasma proteins, decreased immunoglobulins, hormonal deficiency, and deficiency of enzymes. There are certain parameters on which proteins are classified. These are based on physiochemical properties, based upon function, based upon molecular length and shape, and lastly is a nutritional classification. This is a simple classification of proteins. फिजियोकेमिकल क्लासिफिकेशन को अगर हम डिवाइड करें तो ये 3 में डिवाइड हो सकती है: सिंपल प्रोटीन्स, कंपाउंड प्रोटीन्स एंड डिराइव्ड प्रोटीन्स. एंड जो फंक्शनल क्लासिफिकेशन है उसमें कौन सी प्रोटीन्स आ जाती हैं: कैटालिटिक प्रोटीन्स, रेगुलेटरी, स्ट्रक्चरल, ट्रांसपोर्ट, डिफेंसिव, कॉन्ट्रैक्टाइल, जेनेटिक एंड स्टोरेज. स्ट्रक्चरल प्रोटीन में 2 ही टाइप्स हैं, ग्लोब्यूलर एंड फाइब्रस प्रोटीन्स. अब फिजियोकेमिकल क्लासिफिकेशन में जो सिंपल प्रोटीन्स हैं दीज इंक्लूड एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. ग्लोबिन है, प्रोलामीन है, हिस्टोन्स हैं, प्रोटामीन, एल्ब्यूमिनॉइड्स एंड कोलेजन. दीज आर सिंपल प्रोटीन्स. कंपाउंड प्रोटीन्स में जो प्रोटीन्स किसी और के साथ जिनका कॉम्बिनेशन बना हुआ है, लाइक न्यूक्लियोप्रोटीन्स, फॉस्फोप्रोटीन्स, lipoproteins, carbohydrate containing proteins, chromoproteins and metalloproteins. Derived proteins में proteins हैं, these are primary derived proteins, for example denatured proteins, and secondary derived proteins, for example hydrolytic proteins. फिर जो चीज़ important है that is the classification of amino acids. Proteins are nitrogenous colloidal substances made up of amino acid residues which are joined together by a specific type of covalent bond called the peptide linkage or peptide bond.
and most abundant organic compound in the cell's interior. They constitute about 50% or more of their dry mass of the cell. फिर देख लेते हैं कि अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या है. अमाइनो एसिड को अगर आप व्यू करें तो इट हैज 4 आर्म्स. ठीक है, 4 आर्म्स हैं इसके. इसके राइट साइड पे आपको कार्बोक्सिल ग्रुप नजर आएगा, लेफ्ट साइड पे आपको अमाइनो ग्रुप नजर आएगा. ठीक है, अपर टॉप जो साइड है उसके ऊपर हाइड्रोजन लगी होती है, और जो नीचे वाला ग्रुप है दैट इज द आर ग्रुप. अब जितनी भी अमाइनो एसिड की क्लासिफिकेशन होती है ना, या जो अमाइनो एसिड की वेरिएबिलिटी होती है, दैट इज ड्यू टू आर ग्रुप. ये जो आर ग्रुप डिटरमाइन करता है कि अमाइनो एसिड कितना लॉन्ग होगा, कैसा होगा, बल्कि होगा या अनस्टेबल होगा. ये सारी चीज़ें जो हैं ये आर ग्रुप के वेरिएशन की वजह से हमारे पास पता चलती हैं. बाकी सारी चीज़ें सेम ही रहती हैं. आर ग्रुप जो है वो अमाइनो एसिड टू अमाइनो एसिड वेरी करता है. More than 300 amino acids have been described, but only 20 amino acids have been found to be produced in mammalian cells that take part in protein synthesis. These 20 amino acids are called primary, standard or normal amino acids. Each of these amino acids had one or more genetic codon which are present within the molecules of specific messenger RNA. And these messenger RNA themselves are produced from DNA inside the nucleus. Here is the classification of amino acids. Classification of amino acids is based on different parameters. I have some mnemonics of amino acids which I gave them जब रूटीन में ये लेक्चर चल रहे थे. अभी तो ये रिवीजन हो रही है फॉर न्यू कमर्स, वो मैं आपको दे दूंगी. Classification of amino acids is based on whether or not amino acid can be synthesized de novo by humans. On the basis of de novo synthesis, we can divide it into 3 categories: essential, non-essential, and conditionally essential. Second is the classification according to the structure of the side chain. उसमें आ जाते हैं aliphatic, aromatic, side chains containing sulfur, और side chain with hydroxyl group. फिर आज जो थर्ड इसकी बेसिस है क्लासिफिकेशन की, दैट इज अकॉर्डिंग टू द पोलैरिटी ऑफ दिस साइड चेन. इसमें हम डिवाइड करते हैं इनटू पोलर अमाइनो एसिड्स एंड नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स. पोलर अमाइनो एसिड्स में न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स हैं, एसिडिक और पॉजिटिवली चार्ज, और बेसिक और नेगेटिवली चार्ज. और सेकंड जो इसकी टाइप है दैट इज द नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स. फोर्थ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन देयर मेटाबॉलिक फेट. दिस इज इसमें आ जाते हैं ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड, कीटोजेनिक, एंड बोथ ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक. ये सिंपल चार्ट है, ये मजीद मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है इसको कि नंबर 1 में हमारे पास असेंशियल, नॉन असेंशियल और कंडीशनली असेंशियल है. सेकंड इज द साइड चेन के अकॉर्डिंग एलिफेटिक, एरोमेटिक, sulfur containing and hydroxyl group containing. And third is according to polarity, इसमें polar और non polar है. And fourth is according to metabolic fate, glucogenic, ketogenic और both. जो अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं वो तो ये हैं कि वो तो बॉडी में सिंथेसाइज हो जाते हैं खुद से ही, लेकिन जो नहीं होते दीज आर एसेंशियल अमाइनो एसिड्स. फिर ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं नॉन एसेंशियल और एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की, ये आप लोगों को याद करनी पड़ेंगी. ठीक है, नॉन एसेंशियल में कौन कौन से हैं? एलानिन, एस्पेराजीन, एस्पार्टेट, ग्लूटामेट एंड सीरीन. फिर कंडीशनली एसेंशियल हैं जो अकॉर्डिंग टू बॉडी नीड्स एसेंशियल हो जाते हैं. दीज आर आर्जिनिन, सिस्टीन, ग्लूटामीन, ग्लाइसिन, प्रोलीन एंड टायरोसिन. फिर एसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो हैं दीज आर हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथियोनिन, phenylalanine, threonine, tryptophan and valine. There are some
नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स जो कि इन सबसे थोड़े से डिफरेंट हैं, दीज आर सिट्रुलिन, ऑर्निथीन, आर्जिनोसक्सिनिक एसिड, बीटा एलानिन, पेंटोथेनिक एसिड, gamma aminobutyric acid, dopamine, homocysteine and iodinated amino acids. फिर अमाइनो एसिड्स आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू दी स्ट्रक्चर ऑफ साइड चेन्स. इसमें कौन कौन सी टाइप्स हैं? एलिफेटिक अमाइनो एसिड्स, एलिफेटिक साइड चेन्स में these are glycine, alanine, valine, leucine and isoleucine. एरोमेटिक में है हमारे पास फिनाइल एलानिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन. सल्फर कंटेनिंग है मिथियोनिन एंड सिस्टीन. And side chains containing hydroxyl group are serine and threonine. Here next is the classification of amino acids according to the polarity of side chain. इसमें है polar amino acids and non-polar amino acids. Non-polar amino acids include alanine, glycine, isoleucine, leucine, methionine, phenylalanine, proline, valine and tryptophan. पोलर अमाइनो एसिड्स को हमने 3 में डिवाइड किया हुआ है, न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक. न्यूट्रल में है एस्पेरेजिन, ग्लूटामीन, सिस्टीन, सीरीन, थ्रियोनिन एंड टायरोसिन. एसिडिक में एसिड वाले हैं एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड. और बेसिक में है आर्जिनिन, हिस्टिडीन एंड लाइसिन. These are some structures of amino acids with acidic and basic side chains. You don't have to remember the structure, just names. फिर आ जाती है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर मेटाबॉलिक फेट. इसमें है ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स, कीटोजेनिक एंड बोथ ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक. Glucogenic amino acids include glutamine, alanine, glutamate, serine, histidine, asparagine, and glycine. Next is included in these are proline, aspartate, cysteine, arginine, methionine, threonine, and valine. कीटोजेनिक में दो ही हैं, ल्यूसीन एंड लाइसिन. और जो बोथ ग्लूकोजेनिक और कीटोजेनिक दोनों हैं, these are टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, आइसोल्यूसिन एंड फिनाइलएलानिन. फिर है क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स. स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड हमने क्लासिफाई किया हुआ है इनटू एलिफेटिक, एरोमेटिक, सल्फर कंटेनिंग, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग, एसिडिक अमाइनो एसिड, बेसिक अमाइनो एसिड्स एंड अमाइनो एसिड. अमाइनो एसिड की जो ओनली एग्जांपल है हमारे पास दैट इज प्रोलीन. फिर देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो एसिड्स. अमाइनो एसिड की जो प्रॉपर्टीज हैं वो सारी वही हैं जो सिंपल प्रोटीन्स की होती हैं. These are mainly water soluble, which is explained by their polarity and the presence of charge groups, and so they are soluble in polar solvents and non-soluble in non-polar solvents. They have a high melting point over 200 degrees centigrade, which means that very high energy is required to break the ionic forces maintaining the crystal lattice. They have large dipole moments. Then simple lattice, so simple means dipole moments का मतलब ये होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर इस तरह के आयन्स हों जो उसको स्ट्रांगली बाइंड करके रखें. जैसे अमाइनो एसिड के ऊपर ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं.
तो ये इसकी डाइपोल मोमेंट्स इन चार्जेस की वजह से क्रिएट होती हैं। They are less acidic than most carboxylic acids and less basic than most amines. They may be sweet, tasteless or bitter. ग्लाइसिन के अलावा दे शो टू टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, जिसको हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म करते हैं, जस्ट लाइक कार्बोहाइड्रेट आइसोमेरिज्म। द DLN कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हम अमाइनो एसिड्स को देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ DNL ग्लिसरल्डिहाइड ही हम इसमें उसकी बेसिस पे हमने इसको भी क्लासिफाई किया हुआ है। अब हम सिंपल एक अमाइनो एसिड है, उसमें अगर द पोजीशन ऑफ अमाइनो एसिड ऑन द लेफ्ट और राइट साइड ऑफ अल्फा कार्बन डिटरमिन्स द L और D डेजिग्नेशंस। अमाइनो एसिड जितने भी प्रोटीन्स में प्रेजेंट हैं दीज आर L फॉर्म, जिसमें अमाइनो ग्रुप जो है दैट इज ऑन द लेफ्ट साइड। L एंड D आइसोमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, इसमें आप देख लें कि लेफ्ट साइड पे L आइसोमर में लेफ्ट साइड पे हमारे पास अमोनिया है, अमाइनो ग्रुप है, और राइट साइड पे भी D आइसोमर में अमाइनो ग्रुप है। तो ये दोनों शेप्स जो हैं दीज आर दी आइसोमर्स ऑफ अमाइनो एसिड। दिस इज अ सिंपल एग्जांपल ऑफ L-alanine एंड D-alanine। सिंपल जो है वो शफलिंग हो गई है अमाइनो ग्रुप की फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड। Optical isomerism is shown by all amino acids except glycine. All amino acids have the capability to rotate the plane polarized light. फिर जो एक और प्रॉपर्टी है amino acids की, it is the dipolar form of amino acid. Amino acids exist as a dipolar ion. Such ions are electrically neutral. In aqueous solutions, जो carboxyl group है amino acid का, it loses its proton, and NH2 जो amino group है that takes up that proton depending upon the pH of the solution and can act as a buffer. Substances having this property are known as amphoteric. इसमें आप देख लें कि अमाइनो एसिड का ये एक अनचार्ज स्ट्रक्चर है जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ ये हाइड्रोजन लगी हुई है और ये NH2 है। उसके बाद ये उसकी डाइपोलर फॉर्म है या ज्विटर आयन फॉर्म है, दैट इज ए मेजर कंपोनेंट। ये दोनों फॉर्म्स जो हैं दीज आर इंटरकन्वर्टेबल विद ईच अदर। एम्फोटेरिक प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो एसिड्स, ये जो पीछे मैंने आपको बताया कि ये ज्विटर आयन की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं इन एक्वस सॉल्यूशंस, उसका मतलब ये है कि दे कैन एक्सेप्ट और डोनेट प्रोटॉन्स विद इन एक्वस सॉल्यूशंस। फिजियोलॉजिकल पीएच पे दे कैन एक्ट एज एसिड और अ बेस। And all the amino acids have a positive and a negative group. Such substances are called ampholides. फिर जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अमाइनो एसिड की प्रॉपर्टीज में, दैट इज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट और द आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। pH at which amino acid exists as Zwitter ions, it is a neutral pH। और साइड चेन की बेसिस पे एसिडिक अमाइनो एसिड्स की जो आइसोइलेक्ट्रिक पीएच है दैट इज द pH 3। बेसिक अमाइनो एसिड्स की आइसोइलेक्ट्रिक pH is pH 9 and neutral amino acid की isoelectric pH is slightly acidic, that is around 5 to 6. What is isoelectric point? Isoelectric point is a point at which the amino acid exists as Zwitter ions with no net charge on them. Acidic medium में amino acids exist as cations, and in alkaline medium they exist as anions.
As you can see in this figure, in zwitterine form, the physiological pH around the physiological pH 7 and the net charge on amino acid is 0. Cationic form exists in acidic pH 1, net charge is +1, and on anionic form exists at basic pH and net charge on amino acid is -1. Isoelectric point is abbreviated by small p and capital I. It is a pH value at which the molecule has no net charge on it. pH का आप लोगों को उसमें भी बताया था बॉडी फ्लूइड्स में कि pH जो है that is equal to minus log of hydrogen ion concentration, and that was introduced by Sorensen in 1909. And pK is a negative log of dissociation constant, which is a measure of the strength of an acid or a base. When pH is equal to pKa, there is equal concentration of acid and its conjugate base. और जो भी मॉलिक्यूल होता है अगर वो प्रोटॉन दे सकता है या वो प्रोटॉन ले सकता है, वो डिपेंड करता है उसके पीके वैल्यू पे और पीएच ऑफ सॉल्यूशन पे. एसिडिक पीएच पे क्या होता है कि pH is less than pKa, तो इसमें protonated acid form is more, and it means it will give out its hydrogen ion. बेसिक pH पे क्या है, greater than the basic pH greater than pKa, deprotonated form is more, and it will take hydrogen ions to neutralize the pH and bring it down. For example, if we take the example of alanine, जिसमें दो ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, अल्फा अमाइनो ग्रुप एंड दी अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप. लो पीएच पे बोथ these groups are protonated, form 1, net charge is positive. जब हम pH को थोड़ा सा स्लाइटली रेज करेंगे तो क्या होगा कि कार्बोक्सिल ग्रुप अपना प्रोटॉन जो है वो रिलीज कर देगा and becomes CO negative form 2. In this form the net charge on protein is 0. Mama, I see bay. Bay. और ये वाला जो स्टेट है ना मॉलिक्यूल की जिसमें उसके ऊपर नेट चार्ज 0 हो जाएगा, मींस के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, उस फॉर्म को हम कहेंगे ज्विटराइन फॉर्म. ज्विटराइन इज द मोस्ट. अब अगर हम पीएच को फर्दर रेज कर दें तो अमोनिया जो होगा इट विल लूज इट्स प्रोटॉन and it will be converted into form 3 and it will have a net charge over it that is negative. At physiological pH, all amino acids have a positive group and a negative group, so they can act as an acid or a base. Such substances are called ampholytes. अब ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट और आइसोइलेक्ट्रिक पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है कि separation of plasma proteins by charge is done in this manner. उसमें हम करते क्या है कि जो पीएच है उसको आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से ज़रा ज़्यादा रखते हैं, प्रोटीन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और प्रोटीन्स जो हैं वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे. और जो भी वेरिएशंस इन मोबिलिटी पैटर्न जो होती हैं ना, दीज आर
सजेस्टिव ऑफ डिजीज। फिर एक टॉपिक है जी टाइट्रेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। टाइट्रेशन आप लोगों ने एफएससी में पढ़ी होगी। टाइट्रेशन में हम क्या करते हैं कि जो भी एसिड होता है ब्यूरेट में, उसके अंदर हम बेस डालते हैं और हम देखते हैं कि कितनी क्वांटिटी ऑफ बेस जो है वो उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज हुई है। तो सिंपल बेसिक प्रिंसिपल टाइट्रेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स का भी है। अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ड्रॉप वाइज अमाइनो एसिड के सोल्यूशन में डालें एट अ पर्टिकुलर पीएच, तो 50% मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कैटायनिक फॉर्म में होंगे और 50% जो होंगे वो ज्विटराइन फॉर्म में होंगे। इस पीएच को हम लेबल करते हैं PK1। अगर जो है वो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे पीएच टाइट्रेशन करेंगे तो मॉलिक्यूल्स की एनायनिक फॉर्म ज़्यादा होगी, बिकॉज हम बेस ज़्यादा डाल रहे हैं। तो जब भी हम बेस ज़्यादा डालेंगे अमाइनो एसिड के सोल्यूशन के अंदर, तो इट विल हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑन इट। This pH is referred to as the PK2. ये सिंपल डायग्राम है। ये इसमें ये बताया हुआ है कि जब भी हमने टाइट्रेशन किसी अमाइनो एसिड की को कैलकुलेट करना है, तो हम उसके जो दो पी हम लोगों ने जो उसकी पीके वैल्यूज ली हैं, एक जो पीके वैल्यू ली है जब हमने एसिड डाला है और दूसरा जो पीके वैल्यू ली है जब हमने बेस डाली है, तो उसको हम जो भी अमाइनो एसिड की जो आइसोइलेक्ट्रिक टाइट्रेशन पॉइंट होगा उसको हम किस तरह से काउंट करेंगे, PK1 और PK2 को ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो सिंपल इसका पर्पस ये है टाइट्रेशन का कि हमने किसी भी मॉलिक्यूल का जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है वो किस तरह से निकालना है कि हमारे पास PK1 की वैल्यू होनी चाहिए और PK2 की वैल्यू होनी चाहिए। PK1 और PK2 को दोनों को ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारे पास तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट आ जाएगा, जहाँ पे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इज दैट पॉइंट जहाँ पे अमाइनो एसिड के ऊपर कोई नेट चार्ज नहीं होगा। फिर डिफरेंट रिएक्शंस हैं अमाइनो एसिड्स के। रिएक्शंस ड्यू टू अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, साइड चेन एंड रिएक्शंस ड्यू टू बोथ अमाइनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप। रिएक्शंस ड्यू टू अमाइनो ग्रुप जो हैं, दीज आर ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन एंड ट्रांसअमाइनेशन। ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अमाइनो ग्रुप रिमूव हो जाता है एंड corresponding alpha keto acid is formed from an amino acid. Alpha keto acid जो इस reaction के through produce होता है, that is converted into glucose or ketone bodies or is completely oxidized. फिर है जी transamination. Transamination is transfer of the amino group. It means the transfer of an alpha amino group from an alpha amino acid to an alpha keto acid to form a new amino acid and a corresponding keto acid. ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन में क्या होता है कि जो करस्पॉन्डिंग अमाइनो एसिड जो है, व्हेन इट रिएक्ट्स विद कीटो एसिड, इट फॉर्म्स हमारे पास दो तरह की प्रोडक्ट्स ही देता है कि ये कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ नेगेटिव चार्ज और ये अमाइनो ग्रुप के साथ पॉजिटिव चार्ज। तो ये दोनों रिएक्शंस जो हैं दीज आर आपस में इंटर कन्वर्टेबल। फिर रिएक्शंस ड्यू टू अमाइनो ग्रुप में है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बामीनो कंपाउंड्स। कार्बामीनो कंपाउंड्स कब बनते हैं कि व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विद द ग्लोबिन चेन ऑफ प्रोटीन्स, फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन, so it forms carbaminohemoglobin. Carbaminohemoglobin is very important for tissue oxygenation, and this reaction takes place at alkaline pH, and it serves as a mechanism for the transfer of carbon dioxide from the tissues to the lungs by hemoglobin. सिंपल, दैट इज द रेपिटेशन ऑफ द प्रीवियस स्लाइड। कार्बामिनो कंपाउंड्स किस तरह से बनते हैं।
फिर हैं जी रिएक्शंस ड्यू टू कार्बोक्सिल ग्रुप, इसमें आ जाते हैं डी कार्बोक्सिलेशन जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप रिमूव हो जाता है, एंड सेकेंड इज द फॉर्मेशन ऑफ अमाइड लिंकेज। कार्बोक्सिल ग्रुप की वजह से जो फर्स्ट रिएक्शन है दैट इज डी कार्बोक्सिलेशन। अमाइनो एसिड्स अंडरगो अल्फा डी कार्बोक्सिलेशन टू फॉर्म कॉरेस्पॉन्डिंग अमीन्स। फॉर एग्जांपल ग्लूटामिक एसिड जो है वो गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड बनाता है, हिस्टिडीन हिस्टामिन बनाता है और टायरोसिन टायरामीन बनाता है। फॉर्मेशन ऑफ अमाइड लिंकेजेस किस तरह से होती है कि जो नॉन अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड है ना दैट रिएक्ट्स विद अमोनिया और इट फॉर्म्स अमाइड्स। फॉर एग्जांपल aspartic acid reacts with ammonia to form asparagine. Glutamic acid reacts with ammonia to form glutamine. During this process water is also released. फिर है रिएक्शंस ड्यू टू साइड चेन्स, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो है दैट इज द एस्टर फॉर्मेशन। ठीक है, एस्टर फॉर्मेशन में हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग अमाइनो एसिड फॉर एग्जांपल सेरीन थ्रियोनिन कैन फॉर्म एस्टर्स विद फॉस्फोरिक एसिड in the formation of phosphoproteins. Here reactions due to side chains, these are due to sulfidal groups. SH stands for sulfidal and it can form disulfide bond with another cysteine residue. दो मॉलिक्यूल ऑफ सिस्टीन को जब हम ज्वाइन करते हैं तो जो मॉलिक्यूल बनता है दैट इज सिस्टाइन, एंड सिस्टाइन के मॉलिक्यूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन इम्यूनोग्लोबुलिन चेन्स। उसमें सिस्टीन के रेजिड्यूज होते हैं, वो आपस में इंट्रा चेन बॉन्डिंग बनाते हैं। इंटर चेन और इंट्रा चेन दोनों बॉन्डिंग्स बनती हैं जो कि सिस्टीन मॉलिक्यूल्स बनते हैं फिर ड्यू टू द बॉन्डिंग बिटवीन सल्फाइडल ग्रुप्स ऑफ टू सिस्टीन रेजिड्यूज। फिर साइड चेन्स की वजह से जो रिएक्शंस हैं दीज आर ट्रांसमिथाइलेशन। मिथाइल ग्रुप ऑफ मेथियोनिन कैन बी ट्रांसफर्ड मेथियोनिन सिंथेज के प्रेजेंस में। ठीक है, फिर there are reactions due to both amino and carboxyl group. These are the formation of peptide bonds. पेप्टाइड बॉन्ड किस तरह से बनता है कि जब भी हम दो अमीनो एसिड्स को कंबाइन करते हैं और बीच में से ये जो हल्का सा हाईलाइट हुआ है वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन की वजह से जो ये बॉन्ड बनता है बिटवीन CONH दैट इज द पेप्टाइड बॉन्ड। दीज आर सिंपल अमीनो एसिड क्लासिफिकेशन के कुछ नमूनिक्स हैं। In this way it will be easier for you to remember the amino acid classification. अदरवाइज तो वैसे ये नाम इतने ज़्यादा हैं कि वो याद नहीं रहते। ठीक है, दिस आई विल सेंड यू so you can memorize them. Tomorrow we will discuss about the structure of proteins and extracellular matrix.